So we are going to start another topic which is taken from the chapter Infrastructure, which we started already. So I'm going to cover consumption and sectoral pattern of commercial energy. Okay. So ये जो question है वो आपके handouts में which is given to you is after question number 6. So can you all see that? Some related topics. So this topic is given in NCERT. So we are supposed to analyze and understand the topic. So सबसे पहले consumption pattern कैसा है commercial energy का. So we have already covered commercial energy and non-commercial energy. I'm sure we know that where we pay price, which command a price. So जैसे कि घर में बिजली आती है तो बिल देना पड़ता है. Coal, if you go and buy it, you have to pay some price. So whenever you pay some price for any kind of energy, it is basically known as commercial energy. All right. तो अब इसकी consumption कहाँ है? Let's understand one by one. Let's come to the first bullet. In India, commercial energy consumption makes up about 74%. Already underlined है आपके notes में. Total energy का 74% जो है वो commercial energy part है. This includes coal. ये percentage आपको याद करनी है. Highest कौन सा है और lowest especially. Okay. So coal with the largest share is 54% हमारे देश में. तभी तो हम क्या कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जीज को ढूंढ रहे हैं बिकॉज ये तो एग्जॉस्टेबल है. कोल बनता मिलियन ऑफ इयर्स में है बट वी आर जस्ट यूजिंग इट लाइक दिस और उसकी कंजम्पशन ही इतनी हाई है. देखिए ना 54% इट अकाउंट्स फॉर. सो इतना हाई है और ऊपर से वंस यू यूज इट इट्स एग्जॉस्टेड. इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन. सो दैट इज व्हाई government is working very hard to find out new ways or new sources of energy which are renewable in nature. Okay, so 54% you have to remember. Then comes the oil, crude oil and petroleum and everything. So that accounts for 32%. All right, 32. Natural gases भी हम use करते हैं 10%. Then you have hydro energy. Hydro energy समझते हैं water से जो बनती है. वाखरा डैम में energy बनती है. So dams में जो energy बनती है हमें लगता है शायद hydro energy ज़्यादा है. No, it accounts for only 2%. So paper में question आ सकता है highest consumption किस source का है और lowest. So you know that highest is coal, lowest is hydro. Highest is 54%, lowest is 2%. So you have to remember that. Okay, non-commercial sources पे कितने रह गए बेटा? जब 74 वो है तो 26 ये होंगे. So rest is 20. कौन से वाले non-commercial? Firewood, cow dung, waste, agricultural waste, okay, forest waste, ये सब इसमें आ जाता है. So it accounts for 26% of total energy consumption. The critical feature of India's energy sector and its linkage to the economy is the import depends on crude and petroleum products, which is likely to grow rapidly in near future. अब problem क्या है? हमारा concern क्या है? Indian economy का production तो करना है, energy भी चाहिए ही चाहिए. So coal जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं. बाकी भी depend more on oil also, petroleum. ये हम खुद नहीं बना सकते. हमारा जितना natural resource हमारे पास है वो तो हमारे पास है ही, but we just cannot make it on our own. Neither coal nor petrol. कोल तो हमारे पास फिर भी बहुत सारा स्टॉक है, but when it comes to petroleum or the crude oil that we cannot produce on our own. I'm sure you know that it's a natural resource. फिर वो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? वो हमें import करना पड़ता है. फिर we depend more on import. Is import good for the economy? Think about it. Is import good for the economy? Of course not. क्योंकि जब आप इंपोर्ट करते हैं आप अपने लिए पेमेंट ऑब्लिगेशंस यू आर सपोज्ड टू पे डॉलर्स टू देम टू द आउटसाइड द कंट्री. सो माय फॉरेन एक्सचेंज इज मूविंग अवे. तो क्या हो गया? ये फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ाया जाएगा. फॉरेन एक्सचेंज जाने से क्या? फॉरेन एक्सचेंज हमारे एसेट्स हैं. एसेट्स कम होने से हमेशा ही हम टेंशन में रहते हैं, लेकिन क्या कारण है टेक्निकल वो दैट वी विल कवर इन फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर. I'm sure it is clear to all of you. So we talked about consumption pattern कैसा है, ठीक है? 76% commercial पर depend करते हैं, sorry 74% and 26% non-commercial पर. उस 74 का भी 54% coal है and then least क्या है? Hydro. वैसे natural gases भी हैं 10% और भी हमने कुछ डेटा पढ़ा. The other one also 32% is oil. फिर आ गए 26. अब इसमें ही बाइफरकेट करना काउ डंग इतना और वेस्ट इतना, दैट्स नॉन कमर्शियल. वी आर हार्डली पेइंग प्राइस, सो हाउ टू कैटेगराइज दैट. ऑलराइट,
सो वी वरीड अबाउट ऑयल क्योंकि वो अकाउंट बहुत ज्यादा है, ऊपर से हम उस पे ऑब्लिगेशन पेमेंट का बढ़ा रहे हैं, इंपोर्ट्स बढ़ता है। क्लियर? चलो अगले टॉपिक पे चले। सेक्टोरल पैटर्न, सेक्टर वाइज कौन यूज करता है ज्यादा? ये तो था कंजम्पशन वाइज, कौन सा सोर्स ज्यादा यूज होता है, which sector is consuming more? Okay, so we will categorize, इसमें हमने और बाइफरकेट कर दिया। ये सेम टेबल सारा डेटा एनसीईआरटी का पढ़ रही हूं मैं। ओके, सो इसमें जो ट्रेंड दिखाया है वो इसको मोटा ब्रॉडर एस्पेक्ट प्राइमरी सेकेंडरी करने की बजाय और भी हाउस होल्ड में डिवाइड कर दिया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड सम अदर्स आल्सो। ओके, क्योंकि लोग तो और भी यूज करते हैं। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। हाउसहोल्ड 53-54 ईयर को कंपेयर कर रहे हैं करंट से, और करंट का एनसीईआरटी में 14-15 का ही डेटा अवेलेबल है। ओके, सो देखिए जरा, हाउसहोल्ड पहले सिर्फ 10% लेता था, अब हाउसहोल्ड भी 23%। पहले हाउसहोल्ड में ये एसी वैसी नहीं थे भैया सभी के घरों में, ठीक है। सो पीपल यूज्ड टू रिलाई इवन ऑन फैंस, एंड बहुत सारे गरीब घरों में तो फैन तक भी नहीं थे। अभी तो कुकिंग भी हमारी रेंज जो है वो इलेक्ट्रिक हो गई है, ठीक। फिर ovens, tandoors, refrigerators, and there are many appliances which have which are entered into our kitchen and into our houses. So the household consumption is increased. It's almost got double, more than that. So remember that. Agriculture 1% था पहले। एग्रीकल्चर सारा ही मैनुअल होता था, पता है हमें, बुलक कार्ट्स और ये बुल्स के थ्रू डिगिंग करना और फिर प्लांटेशन और सारा सोइंग सीड एंड एवरीथिंग यूज्ड टू हैपन। पानी का भी नेचुरल रिसोर्स पर ही, नेचुरल वेदर कंडीशंस पर ही डिपेंडेबिलिटी थी। बट जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो फिर हुआ क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन में जो सीड्स थे वो तभी इफेक्टिव थे अगर मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स होंगी। क्लियर? सो इस वजह से कंजम्पशन इन एग्रीकल्चर, मैं आपको जो ये बोल रही हूँ, आई एम नॉट वेस्टिंग माई एंड योर टाइम, आई एम जस्ट टेलिंग यू द रीजंस। बाय चांस पेपर में आए एग्रीकल्चर की कंजम्पशन 1% से बढ़कर 18 कैसे हो गई भैया ड्यूरिंग दिस टाइम? यू शुड हैव एन आंसर। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन दिस हैज हैपेंड। हाउस होल्ड की कंजम्पशन कैसे ज्यादा हो गई? सो यू शुड नो द रीजन, सो आई एम जस्ट गिविंग यू द रीजंस। सो 1% से 18%, अ बिग चेंज। इंडस्ट्रीज में भी ऑल्दो चेंज आया। अगर आपको पता हो, हमारी सेकेंडरी जो है, प्राइमरी सेक्टर चेंज हुआ, सेकेंडरी सेक्टर जो है उसमें मोर और लेस इट इज सेम, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, ठीक है। सो इट इज 40-44, सो वी से इट्स मार्जिनल। और वैसे भी इतने डिकेड्स की बात तो आई थिंक इतना तो बढ़ ही जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ? कंजम्पशन कम हो गई, क्योंकि अब हम ज्यादा कहां पर, पहले क्यों था पता है? रेल जो था वो कोल पर डिपेंड करता था, कोल सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन अब सारा आई थिंक 90% से ज्यादा ट्रेन्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पर शिफ्ट हो चुकी हैं। सो कंजम्पशन फॉर कमर्शियल एनर्जी, व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल, जो सबसे बड़ा सोर्स कोल था वो तो कम हो गया ना राजे, ठीक है। और पर्सनल व्हीकल्स ने वो पर ओवरटेक कर लिया, ठीक है। सो अब लोग जो है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट दे ट्रेवल बाय ट्रेन एंड पीपल हैव देयर ओन कन्वेंस, so that is why they move on their own. तो अगर हम कंट्री वाइज एक कंजम्पशन देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन ज्यादातर रेलवे कंजम्पशन को भी लिया गया है, ओके। और अब एनर्जी एफिशिएंट जो व्हीकल्स आ गए हैं उसकी वजह से भी कंजम्पशन हैज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। अदर्स में कुछ नहीं बताया गया, कौन अदर, जो बच गया वो 5 से उसका भी अकाउंट बढ़कर 13 हो गया है। सो नीचे आते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर स्पेशली वाज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कमर्शियल एनर्जी बिकॉज ऑफ ट्रेन्स चलती थी कोल पर, कमर्शियल एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स था। However, there has been continuous fall in the share of the transport sector, while the share of household and agriculture has taken up. Okay, it has increased. The share of oil and gas, अब इसको उसने तभी जस्टिफाई कर दिया नीचे, भाई ट्रांसपोर्ट में, मैं मेनली कमर्शियल में भी कोल की ही बात कर रहे हैं। The share of oil and gas is the highest among commercial source of energy, consumption. Okay, with the rapid rate of economic growth, there has been corresponding increase in the use of energy.
सो ये तो है ही। अगर कंट्री ग्रो कर रही है, आप बताइए जरा, तो क्या एनर्जी की जरूरत ज्यादा होगी या कम होगी? ऑफ कोर्स दे गो हैंड इन हैंड। आई थिंक आगे क्वेश्चन आएगा भी कि अच्छा ये भी है, दोनों में कौन किस पे डिपेंड करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से कंजम्पशन ऑफ एनर्जी ज्यादा है या एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होने से ग्रोथ हो रही है? सो दे बोथ आर, I cannot say one is the cause and the other is effect. It can be anyways. It can be anyways. क्योंकि कंट्री ग्रो कर रही है तो एनर्जी तो चाहिए, प्रोडक्शन करना है। क्योंकि एनर्जी है और प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, इसलिए भी कंट्री ग्रो कर रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो इस तरह से इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है बच्चा? सो दिस वाज ऑल अबाउट कंजम्पशन पैटर्न एंड सेक्टोरल पैटर्न। कंजम्पशन पैटर्न में आपने कौन से सोर्सेज हैं उसके वाइज समझा दिया, और सेक्टोरल पैटर्न में आपने क्या समझाया? विच सेक्टर इज चेंज्ड, किसने कितने से कितना हो गया, ये सब बातें आपने इसमें बोली। रेस्ट आई विल कवर इन द कमिंग वीडियोस। बाय बाय।